Hello friends, our today's topic is a property of a linear time invariant system. So before going to start with this, we have uh, completed that property of the convolution. Okay, so that portion we have completed. Uh, so what is that? So in that we have seen that the property of linear convolution, okay, that is a cumulative properties. Okay, so in cumulative property you know the basic funda, what is the cumulative property. Okay, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा. Then we have a associative property and then we have a distributive property. Okay, so this thing we have done. Okay, so statement and proof theory that we have proved. Okay, then same thing. Okay, भाई h आगे चला जाएगा, x पीछे आ जाएगा. Same way associate property. Okay, and then we have seen the distributive property. Okay, and then we have some interconnection of the linear convolution system, that is if the system is a series connection, parallel connection. Okay, series, parallel and cascade arrangement is there. Okay, so that we have seen, and the example basis of that we have covered. Okay, so that we have done. Okay, example. Okay, so that portion has been covered in last session. Okay, now so today's topic is a property of a linear time invariant. ओके, सो प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि भाई सिस्टम्स के रिगार्डिंग अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो किस तरह होगी. तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कोजल है कि नहीं, नॉन कोजल है. टाइम वेरिएंट इज ऑब्वियस लीनियर टाइम इनवेरिएंट. देन मेमोरी लेस है कि मेमोरी लेस नहीं है. ओके, स्टेबल है कि नहीं है. ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टी sorry, these are the properties. Okay, and that we will see. Okay, so first of all, let's start with the causal and non-causal systems. Okay, so now in causal and non-causal, तो statement that we know कि भाई causal system हम किसे बोलते हैं और non-causal system किसे बोलते हैं. तो we have already studied the discrete time system, and so if the causal system is causal, so कब वो causal होगा? The output system output is depend only on present and past input and not on the present input. Okay, future base पे नहीं होगा. Okay, so now in this section we will prove the linear time system is causal, and if it's causal, कब causal होगा? जब hn इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर n लेस देन ज़ीरो. ओके, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कोजल कब कहा जाएगा? जब hn की वैल्यू ज़ीरो है फॉर द n लेस देन ज़ीरो. ओके, सो नाउ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कोजल इफ एंड ओनली इफ hn इक्वल टू ज़ीरो फॉर n लेस देन ज़ीरो. नाउ दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द causality of LTI system. Now in simple word we can write the statement as a LTI system is causal if its impulse response hn equal to 0 for negative value of n. So now let's prove it. So we have standard equation that yn equal to sigma k equal to minus infinity to infinity hk xk hn minus k, वो इक्वेशन हमारे पास है. सो आई कैन राइट, प्रॉपर्टी हमने आगे देखी है कि भाई ये प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई एच के यहाँ एच को यहाँ ले जाओ, और मीन्स ये वाला एच के एक्स के एच के इक्वल टू आई कैन राइट एच के एक्स के. ओके, सो प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो फ्रॉम दैट आई कैन डायरेक्टली राइट कि भाई मैं ये लिख सकता हूँ. ओके, सो नाउ अब लिमिट की बात करें. सो लिमिट वी हैव सॉरी, सो हियर लिमिट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ. कि नाउ सो फर्स्ट इज लेट से के इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक पोर्शन, एंड अनदर पोर्शन इज प्लस माइनस इन्फिनिटी टू वन, minus infinity to minus 1. Okay, so that is second limit. Okay, so not that the total range k is
from minus infinity to infinity is divided in two part. First term we have taken the range from k to infinity, sorry, k is from 0 to infinity, and second term is from minus infinity to minus 1. because क्यों हमने ऐसा किया? because we have covered k equal to 0 in the first term. Okay, that's why. So for the second summation the range is between these two. Okay, okay. So from now so from this from अगर मैं इसको simplify करूँ, so finally I can write this equation, sorry, I can write this equation. Okay, so now expanding the term of summation we get yn equal to h0 x0 h1 xn, because n minus k है, k की वैल्यू में वेरी कर रहा हूँ. ओके, h2 xn माइनस टू प्लस वन, और सेकंड के लिए h माइनस वन xn प्लस टू h माइनस टू xn प्लस टू एंड सो एंड सो. ओके, सो नाउ लेट्स कंसिडर द प्रेजेंट कंडीशन इज एट n इक्वल टू 0. तो प्रेजेंट कंडीशन कब है? n equal to 0. So we can say xn equal to 0, that is the present condition. xn minus 1 and x minus 2 माइनस जो डिले प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स द पास्ट कंडीशन, और प्लस 1 और प्लस 2 दैट मीन वी कैन से एडवांस कंडीशन. वी कैन से वो एडवांस वैल्यू है अगर प्लस फॉर्म हो रहा है तो. ओके, सो वी डिस्कस दैट फॉर द सिस्टम ऑफ कोजल वी वांट ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, नॉट अ फ्यूचर इनपुट. सो वी डू नॉट वांट future input. Okay, so the second bracket of the equation 5.64 means this wala bracket, okay, should be a 0 to make the system stable, sorry, to make the system causal. Okay, means so hence the x n plus 1 and n plus 2 are the future input. We do not want to make input to the system 0. So second bracket is 0 if we adjust x minus 1 x minus 2 x minus 3 to be equal to 0. अगर वो वैल्यू 0 ही तो ही ये वैल्यू 0 होगी. ओके, then in this case we will have only first bracket term. That means we will have only present and past input terms, and that's why it will be a causal. So for the causality, or to make the LTI system causal, this h minus 1 h minus 2 h minus 3 equal to 0. That means h n equal to 0 for n less than 0. Okay, and similarly for continuous system the condition of causality we know. Okay, so this is the, we can say, condition for the causal and non-causal system of a LTI. Okay, so now second is a memoryless, means static and dynamic. Now so the system is memoryless if the output at any time depend only the value of the input at the same time. तो स्टेटिक हम कब बोलते हैं? जब इनपुट वैल्यू आउटपुट वैल्यू पे, अरे आउटपुट वैल्यू इनपुट पे डिपेंड है सेम टाइम पे. ओके, सो इन डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम मेमोरी लेस और स्टेटिक इज एच एन इक्वल टू 0 फॉर एन डज नॉट इक्वल टू 0. सो इन दिस केस द इम्पल्स रिस्पॉन्स हैज़ द फॉर्म, अगर इम्पल्स पिक्चर में है तो एच एन इक्वल टू के डेल्टा एन आई कैन राइट, वेयर के इक्वल टू h0 इज अ कॉन्स्टेंट and convolution sum reduces to yn equal to kxn. Okay, so now for the dynamic system, a system with a memory or dynamic, if the system present output depend on the present input as well as input as other time. Okay, दूसरे टाइम पे भी डिपेंड हो. Okay, so discrete linear time is with a memory or dynamics if the hn equal to not 0 for n does not equal to 0. Okay, means if the discrete linear time LTI system has a impulse response hn that is not 0 for n equal to 0, then the system has a memory. So that the system has a memory. So finally I can write this.
okay, for the memory system. Okay, okay, now then we have a stable system. So stable के लिए हमें पता है कि भाई अगर we got some value, बाउंडेड इनपुट है और बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, फॉर द बाउंडेड इनपुट यू गॉट अ बाउंडेड आउटपुट, मीन्स सम फाइनाइट वैल्यू, कोई वैल्यू मिल रहा है तो सिस्टम स्टेबल है. अदरवाइज अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है देन द सिस्टम इज़ अनस्टेबल. वो लॉजिक हमें पता है स्टेबिलिटी और स्टेबल सिस्टम के लिए. ओके, सॉरी. सो नाउ LTI, sorry, LTI system is stable if its impulse response is absolutely summable. Okay, कुछ वैल्यू मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू इज देयर, then and then. So let's prove that. Consider the linear LTI system having a impulse response Hn. Let Xn be the input applied to this system. वो अप्लाई कर रहे हैं Xn Hn को. नाउ अकॉर्डिंगली द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन है कि भाई अगर ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा इनपुट है तो मुझे आउटपुट Yn क्या मिलेगा, मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है. वो पता है कि भाई दिस इज़ माई आउटपुट, दिस इज़ माई इनपुट एंड दिस इज़ माई सिस्टम. ओके, वो हमें पता है. एंड फ्रॉम दैट आई कैन राइट दिस इक्वेशन. मैंने x को यहाँ ले लिया, h को यहाँ ले लिया. ओके, आई कैन राइट दिस इक्वेशन. सही है. Okay, now first we will define the bounded sequence. Okay, now finite value. Okay, a discrete time sequence is said to be a bounded if the absolute value of every element is less than some finite value. तो बाउंडेड हम किस तरह कहेंगे कि भाई सिस्टम बाउंडेड वैल्यू मिल रहा है, कि भाई कोई वैल्यू मिल रहा है तो कोई वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू बतानी पड़ेगी कि भाई कोई फाइनाइट वैल्यू से हमें कुछ वैल्यू कम मिल रही है, दैट मीन्स कि कोई वैल्यू मिल रही है विच इज़ कैलकुलेटेड. ओके, तो वो सिस्टम्स मीन्स स्टेबल फॉर्म में है, इस तरह हम कह सकते हैं. ओके, तो ये कंडीशन है कि भाई क्या है कि भाई सीक्वेंस इज स्टोर्ड टू बी बाउंडेड इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट इज लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू. ओके, कि भाई इनफाइनाइट नहीं बट फाइनाइट वैल्यू से कोई कम है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही है. ओके, सो दस द इनपुट Xn विल बी अ बाउंडेड इफ Xn. अब ये Xn कब बाउंडेड है, अगर Xn की वैल्यू लेस देन सम फाइनाइट नंबर मिलती है तो. ओके, सो लेट अस डिनोट दिस फाइनाइट नंबर बाय, कोई एक एज्यूम करते हैं कि भाई ये फाइनाइट नंबर है mx, m सफिक्स x. दस फॉर द इनपुट सिग्नल फॉर ऑफ द बाउंडेड, बाउंडेड बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी Xn इज लेस देन और इक्वल टू mx है, तो ही हम बोल सकते हैं कि भाई Xn स्टेबल फॉर्म में है. सो हियर Xm इज अ सम फाइनाइट वैल्यू और नंबर, सो डेफिनेटली इट्स वैल्यू शुड बी अ लेस देन इन्फिनिटी. ओके, सो ये हमने एज्यूम किया है कि भाई ये इनफाइनाइट नहीं है, कोई एक वैल्यू है जो इन्फिनिटी से कम है, तो ही हम बता सकते हैं कि भाई कि अगर ये वैल्यू से कोई वैल्यू कम आ रही है दैट मीन्स वो सिस्टम्स स्टेबल है. ओके, सो नाउ अगर वी कैन राइट दिस वे कि भाई Xn इज लेस देन mx बट mx इज ऑल्सो लेस देन इन्फिनिटी. ओके, सो फाइनली नाउ टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन 5.68. ओके, yn मोड लगा दिया है हमने पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंड करने के लिए. ओके, okay, so I think yeah, so we will read the right hand side of the equation as the absolute value. Okay, so if we take the sigma sign outside them terms, so it become this one. Okay, and this is the summation of absolute value of terms. Always absolute sum of terms is less than or equal to the sum of absolute term. Okay, so I can write this equation now. अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ. ओके, मोड वाली वैल्यू यहाँ लाया जो में स्टैंडर्ड वैल्यू थी. ओके, सो नाउ बट फ्रॉम द इक्वेशन ये वाला ये टर्म कौन सा है, ये तो सर yn है, तो दिस इज yn
तो आई कैन राइट हियर वाई एन हमने पुट कर दिया कि वाई एन इक्वल टू दिस. सो हैंस हियर एक्स एन माइनस के इज डिले इनपुट सिग्नल. इफ इनपुट इज बाउंडेड देन दिस इट्स डिले वर्जन इज ऑल्सो बाउंडेड. अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहाँ डिले प्रोवाइड हो रहा है, तो उसका वैल्यू में भी डिले आना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू डिले होना चाहिए. ओके, सो बाय परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन द मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज. नाउ द बाउंडेड इनपुट वी कैन राइट कि भाई अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आई गॉट दिस फॉर्म. ओके, एंड आई कैन दिस फॉर्म कि भाई यहाँ भी मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. ओके, सो फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है तो आई कैन राइट एम एक्स. वो एम एक्स के कम ही होगी. सो आई कैन राइट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एम एक्स. सो आई हैव पुट हियर एम एक्स. ओके, इस इक्वेशन में. ओके, सो वी नो दैट एम एक्स इज सम फाइनाइट नंबर. वी वॉन्ट आउटपुट वाई एन. हमें क्या चाहिए कि भाई ये मुझे फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए. ओके, दैट मीन्स वाई एन शुड बी अ फाइनाइट. Okay, so from equation this, okay, so from sorry, one more equation is remaining, this one कि भाई ये आगे ला दिया है मैंने. okay, so now from equation this from sorry, so from equation this, okay, I can write this one equation. okay, so hence here hk equal to xn is the impulse response of linear time LTI system. And so now for the stability factor of point of view, okay, we can say S equal to, अब स्टेबिलिटी फैक्टर को हम एस से डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट एच के इज लेस देन सब इन्फिनिटी. सो दैट इज सम स्टेबल finite value. Thus the linear time system is stable if the impulse response is absolutely summable. वो हमें पता है कि भाई अगर कैलकुलेटेड है और कुछ आउटपुट मिल रहा है विच इज़ हैविंग ए सम वैल्यू, सो वी कैन से इट्स अ स्टेबल सिस्टम. ओके, so I hope you are clear with this property of that. And lastly we have a invertible system. okay, so now in invertible system we बेसिक फंडा क्या है कि भाई जो इनपुट है वो आउटपुट से लिंक है. ओके, जो इनपुट है वो आउटपुट से लिंक है. सो नाउ सॉरी, a linear time invariant system generate the output output by taking the convolution of input xn and impulse response hn. वो हमें पता है ये वाला इक्वेशंस. ओके, बट इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट द इनपुट सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट. ओके, जो इसमें हम फीडबैक लेते हैं. ओके, फीडबैक लेते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इस फीडबैक वाली जो सिस्टम है उसे हम इन्वर्स सिस्टम फॉर्म करते हैं कि भाई इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड है. ओके, सो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द LTI सिस्टम उस फंडे पे फोकस करता है. ओके, तो सिस्टम इज सेड टू बी अ इन्वर्टिबल if the input of the system can be recovered from the output of the system. To achieve the same input, consider two systems connected in series where the second system is used to recover the input. The block diagram is shown if you can. Means xn h, तो हमें कुछ मिला yn. अब वो yn को मैं इस सिस्टम के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, तो आई गॉट, मतलब ये वाले ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आई गॉट वाई एन विच इज़ इक्वल टू एक्स एन. तो मुझे एक्स एन ही मिल जाएगा. ओके, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ इन्वर्टिबिलिटी. ओके, ओके, सो हियर एक्स एन रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड प्रोड्यूस वाई एन, वेयर एक्स एन इज इनपुट एंड वाई एन इज अप्लाइड टू दिस. सो फाइनली आई कैन राइट दिस फॉर्म. सो आई कैन राइट दिस वाई एन इक्वल टू सिस्टम इंटू एक्स एन. तो हमने लिखा. अब एक्स इनवर्स वाई एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सिस्टम. ओके, जो हमें एक्स एन मिल रहा है, बट एक्स इनवर वाई एन, तो वाई एन क्या है, वाई एन तो ये है. तो अगेन एच, तो दोनों एच एंड एच इनवर्स कैंसल हो जाएंगे, वन आ जाएगा. तो फाइनली वी गॉट एक्स एन. तो मुझे एक्स एन ही मिल रहा है. ओके, हियर ऑपरेटर एक्स एच इनवर्स इज अ इनवर्स ऑपरेटर एंड the associated
system is called as a inverse system. Okay, so I hope you have clear with this property. Okay, now let's see one or more example regarding this, so you have more clear about this. Okay, that now let's say which of the following system are invertible, if invertible then find the inverse. कि ये जो सिस्टम दिया है उसमें कौन से है. सो फर्स्ट इज अ वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस एन, वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस एन. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, सो इट इंडिकेट्स दैट एक्स टी, और इसमें डीले क्या है, माइनस एन सैम्पलिंग है. ओके, तो उसका अगर इन्वर्स डिफाइंड किया जाए तो ये माइनस है तो उसका इन्वर्स प्लस होगा. तो वी कैन डिज़ाइन द अनदर सिस्टम in which xt can be made advance by n sample. ओके, तो जो इन्वर्स डिफाइन करेंगे इन्वर्स सिस्टम वो होगी y t प्लस एन. सो इट्स y t प्लस एन. ओके, तो ये वाली x सिस्टम x t माइनस एन और इन्वर्स सिस्टम है t प्लस एन. सो फाइनली I have this equation. So finally n cancelled and I got xt, and which is my input. So वही मिल रहा है जो finally I can say कि भाई the system is inverse system. Okay, same way for the second, that is xt yt equal to x to t. तो ये मेरा इनपुट है. तो दूसरी अगर मुझे सिस्टम अप्लाई करनी है दैट इज़ अ इन्वर्स सिस्टम, तो वो कैसे कौन सी होगी. तो यहाँ 2t मिल रहा है तो उसकी इन्वर्स क्या होगी, t/2 हो जाएगी, t/2 होगी. ओके, सो दिस सिस्टम इंडिकेट द आउटपुट और ऑब्टेन बाय द कंप्रेसिंग इनपुट बाय फैक्टर 2. दैट मीन्स द इन्वर्टिबिलिटी सिस्टम एंड इन्वर्स सिस्टम वी हैव z इक्वल टू y t/2. तो ये xt है और ये है y t/2. तो xt इंटू यहाँ डिवाइड बाई 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे. एंड फाइनली अगेन आई गॉट xt. ओके, ओके, देन वी हैव अनदर एग्जांपल दैट yn इक्वल टू एन एक्स एन. ओके, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई इन्वर्स फॉर्म हो गया, डिवाइड बाय एन होगा. सही है, डिवाइड बाय एन होगा. सो वी हैव इक्वेशन दैट जेड एन इक्वल टू 1/n वाई एन. सो फाइनली डिवाइड बाय एन, तो एन एन क्या हो गए, सॉरी एन एन कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एक्स एन. ओके, इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो फाइनली आई गॉट इनपुट. ओके, वी लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल से impulse response, sorry, so I hope you have now more clear. Now impulse response DT-LTI system is given by, ये कुछ दिया है पे hn equal to n 1/2 raised to n un. You have to find out कि determine whether the system is stable or not and another is system is causal or not. Okay, तो स्टेबिलिटी के लिए पता है कि क्या कंडीशन है कि भाई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए. ओके, सो वी हैव अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कि भाई ये जो एच एन है वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए. ओके, नाउ फॉर द गिवन इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, एच एन की वैल्यू कि भाई एच के दिया हुआ है कुछ लेस देन, एंड दैट इज़ द वैल्यू n 1/2 रेज़ टू n un. अगर मैं n की जगह यहाँ k कर देता हूँ बिकॉज ये हमारी कंडीशन है, तो k n की जगह k हो जाएगा, k 1/2 रेज़ टू k इंटू यू के. अब ये तो यूनिट रिस्पॉन्स है. Okay, so now I can write this equation. Now here un equal to u can, that is a unit step यानी 1 आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इन दैट. सो आई गॉट दिस इक्वेशन, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, तो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन ओनली. अब ये इक्वेशन है ना, ये फॉर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a रेज़ टू k. अब इसका इक्वेशन है, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन है a डिवाइड बाय 1 माइनस a रेज़ टू स्क्वायर और स्क्वायर फॉर a लेस देन 1.
तो ये वही इक्वेशन है, उसको यहाँ इसमें रखो. ए क्या है, ए है 1/2, तो आई के हैव 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट ओवर रेस टू स्क्वायर. ओके, सो आई के हैव दिस. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 कैंसल आउट, तो फाइनली आई गॉट output that is 2 and which is less than the infinity, means calculated value I got. So its system is stable. Okay, and another is कि भाई क्या है, सेकंड इज यू हैव टू फाइंड द सिस्टम कोजल है कि नहीं. अब कोजल के लिए पता है कि रेंज कहाँ से होता है, मल्टीप्लाई अगर UN है मतलब 1 वैल्यू है, यूनिट सिंबल है, सो इट्स obvious positive value is that means the range is from 0 to infinity, so the system is obvious causal system. Okay, the system is causal. So I hope you have a clear with this some examples and properties of LTI: causal, non-causal, static, dynamic, stable, unstable, okay, inversibility, okay, and example related that. Okay, so lastly we have assignment question, and that is one question you have to explain the property, all property you have to explain in this. Okay, so finally I have just ended this session. Okay, sorry. Okay, thank you.